गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो रैथल में सुबह हो चुकी है। इस समय करीब 6:15 हो रहे होंगे सुबह के, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के सुबह का नज़ारा रैथल में। ये देखिए काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों में। कल से बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरी है पहाड़ों में। बर्फ़ थोड़ी कम थी, कल शाम के समय हम आए थे, और आप सुबह देखिए पूरे ढक रहे हैं ट्रैकिंग स्टिक चाहिए या डाउन जैकेट चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इंडिया हाइक्स के रेंटल रूम से आप ले सकते हो। पहला दिन रहेगा ट्रैकिंग का, और आज हमें यहाँ से निकलना है रैथल से। तो मज़ा आएगा। सुबह सुबह तो मौसम अच्छा रहेगा, बट अगर बादल ऐसे ही रहे तो दोपहर तक हो सकता है दोबारा बरसात हो जाए। तो रेनकोट का शायद आज यूज़ ज़रूर होने वाला है। चलते हैं अंदर। गर्म पानी है नहीं अभी, वो तो थोड़ा वेट करते हैं। Everybody has taken their eco bags. Yes. आप दोनों के eco bags कहाँ हैं? I have it here. और मेरा पीछे है। बेस पे लगा लीजिए। ले लगा लो। ये जब हम लोग ब्रीफिंग करेंगे उस टाइम पे आप लगा लीजिए, ठीक है? And apart from that, everybody has taken their liners. Yeah. Liners. Yes. Yes, we've taken. Sleeping bags. Everybody's down. Yes. Okay. Awesome. And apart from that, okay. All set for the Yes. trek? Yes, we are. How excited are you? Super excited. On the scale of 1 to 10. 1 to 10, 10. 10. Awesome. Really excited. Alright, so I'll quickly show you how to tie your shoelaces in a way that it doesn't open on the way and you save your legs from the blisters. Okay. Before that, I wanted to put one expectation forward. So as we said yesterday that let's take care of punctuality and teamwork, but today I couldn't see it. Like we were coming at 8, and when we say that we love mountains, the first thing that comes is respecting them, right? And respecting them means respecting the timing as well. So respecting mountain people's timing, respecting mountains timing. As Ravi said that we have kept our timing in a way that we reach safely to our campsite.
so that after that if it rains or hails or snows, whatever, there won't be any issue. But if there is a whiteout, you can't see anything, you are stuck at one place, it's snowing, it will be a tough task, and we wouldn't want to do that, right? So let's respect each other's timing, and especially kitchen teams, they wake up way earlier than us, and you like the food, right? Yeah. Love the food. So let's respect their timings. They wake up at 5:36 to make sure that we are having good food and good timing, good chai and everything on time. So let's respect that. Surely. Will I have to say it Yeah. again? No. Okay, No. awesome. Let's be on time for food and for assembling as well, because if two people are also waiting for the rest of the team, that's unfair, and I personally wouldn't entertain that. Okay, let's take care of that. Alright, so I'll quickly show you how to tie your shoelaces. Okay, so it's called surgeon knot. So please pay attention over here, and then you can tie your shoelaces the same way. Okay. I am going to change my shoes, don't worry. Alright, so many of you would be having loops on the ankle, like two loops on the Yeah. ankle. So till the end you crisscross normally and tie your shoelaces the same way. And once you reach the last point, what you do is you tie it twice like this. Okay, and then butterfly knot also, you tie it twice Okay. like this, and remaining part you can put it like this. So you all can tie your shoelaces the same Remaining way. part where to put? Full on sun mein. No, I don't like summer treks. I like winter. मतलब autumn or. But don't you want to see the beauty of Rupin Pass and Buran Ghati? I want to, but Definitely. Buran Ghati I want Treks to do like in those. October. Okay. September or October. That time is the best. See, like afternoon time it gets really hot. So that is the only problem. Buran Ghati actually was on my list. If that would have been in April, I would have done it. I did not get time. I don't get. ठीक है. Okay, so team, this tech pole has different parts. So I'll tell you about the parts and how to use it. Okay. So this is called the hand strap. So you'll be putting your finger inside and thumb also inside. Is it? No, What? not thumb inside. Entire thumb hand outside. inside. No, not entire hand. Only 4 fingers. The band will come from here. You have to hold Yes. it like this. All right. So your 4 fingers will go inside this, and your thumb will be outside. Okay. Why? Because just in case you're falling, you might hurt your wrist. It won't come out, right? And it will just like hurt your arms, entire arms. Okay. So to avoid that, we'll keep our thumbs outside and fingers inside. Okay. And this is called the hand grip. Okay. So this is why we chose this particular cross tech pole is, one of the reasons is this has a rubber insulation. Okay, so like whenever there is up there, it's cold, when you will be leaving early in the morning for the summit day, it will be cold and it will give you insulation. Alright, so that is why we keep this. And this is called the shaft of this tech pole. This is unadjustable, non-adjustable, and these two parts are adjustable. Okay, so make sure that these two parts are equally opened, and not one is big and one is small, because it also has a stop point. Don't reach till that point, otherwise your trek pole will break. Okay, so keep it below the stop point, and this is how you can adjust this trek pole. And whenever you're keeping it on the ground, it should make a 90-degree angle. So right now it's like big for me, so I'll decrease the height of this trek pole. Okay, like this, and now it's just making a 90-degree angle from my elbow. So this is how it should be on the flat surface. When you ascend, it should be smaller. When you descend, it should be longer. Okay, why? Angle. Yes, angle is very important, because this tech pole takes 20% of your body weight on itself. If the angle or posture is not right, it won't do its job. Okay, so this 90-degree angle will make sure of it, and ascend may decrease the height, and descend may increase the height. Okay, so this is alloy aluminum, mix of both of them, and this is the steel, very pointy, sharp point, the point here. So it's very sharp. A lot of people, what they tend to do is, Tina, can you see her? Okay, so a lot of them, what they tend to do is, they keep their trek pole like this and then click pictures. Pant upar kar liya? No, we have to save our trek mates. Okay, so instead of that, what you can do, you can hold your trek pole like this and click pictures and
adjust your pants and not doing like this. Okay, clear? Awesome. Now you can adjust the trek poles. Done. And this is, you can remove it. It is to store your trek pole. So yeah. I'll just And then tightening all the straps is extremely important, as Ravi said yesterday. So all your small bags also, make sure that you are tightening all the straps, because it will make sure that the weight is distributed equally. Okay, so I'm not adjusting it since like it's your side. But is the weight of that? Yeah, bag. So for your bigger treks also, whenever you are tying your carrying your backpack, Richa, can I have your attention please? Yes, whenever you are carrying your backpacks, make sure that all your straps are tight enough, and this chest strap and this shoulder strap. Okay, so all this has to be tight enough so that it's hugging your body, like it's no different part other than your body. So offloading bag है ये सारा offloading. So it makes sure नहीं, that वही वो मेरा है. So that is not offloading, no? that this load lifters are also very, very important. This just makes sure that your balance is equally the weight is equally distributed and balanced, so that you are easy to work, like it's very comfortable to work. I don't feel any weight here. Alright, alright. So before leaving, we will do two things. So one is doing our TEA, that is Trek Experience Agreement, and after that we'll do our warm up. Alright. So Trek Experience Agreement, it says that as yesterday. Can we all come like this? Yeah. Alright. So Trek Experience Agreement, that says that, like how Ravi explained it yesterday, and I was also speaking about it in brief, that these 4 days can actually transform your lives. So this is how we take Trek. Now, two things that come very naturally with a trek, that is like confidence. You gain confidence, you learn things, you learn how to ascend and descend properly, and then through some or the other activities, you gain confidence in different ways, basically. So, and second part is resilience. You face a lot of difficulties here. Cold is something that we don't experience back in the cities, this much of cold, and when you come out of it strongly, it just teaches you a lot of resilience. And back in the cities, when you go back, you are able to face difficulties even in a more easier way, right? That's something that naturally happens. You will realize it by the end of the trek. Now, the Trek Experience Agreement is something that will make sure that as a group, as an individual, in both ways, we are achieving these goals, or we are having those sorts of experiences which are helping us transform or taken from nature and mountains what they have in store, right? So decide on one trait that you want the entire team to perform for the rest of the 4 days, and if somebody doesn't follow it, we'll politely knock them, and then they'll be alerted and they'll do the thing. Alright, clear? Okay, so one by one we will create our TEA. So this is our Dayara Bugyal mountain. Like example, you want everybody to keep the trails clean, okay? So one will say that. One
wants everybody to Be be punctual. One wants everybody So to I enjoy. want my team to be adaptable. Adaptable or adaptable? Adaptable. That's right. I know. That's fine. This one. Adaptable. Okay. I want my team to be adaptable. So no matter whatever nature or the wilderness, any sorts of challenges these wilderness or nature throws on us, we will be adaptable to it. Yes. Next. Who wants to go? जय मैं जाता अब भी मैं ट्रेडमिल कैसे पकड़ने का? हूँ। ये ऐसे चलेगा। I'm not. नहीं अभी तू जब he was walking it like this. Keep the track pole down, no? Okay, sorry, how many of you are carrying a DSLR or a GoPro? he's carrying. Just you? Two of them. You're not going to use it? We don't know. Okay, so... मतलब पंचुअल का स्पेलिंग भी भूल गया पता है We क्या? need a permission. C. Yes, C, 100 bucks NC. needs to be paid for it. CT. Okay. Naveen, 100 bucks you have बच्चे to तेरा pay क्या लिखूं? लिख तू फटाफट जा। $100. for, Right now? Yeah. For the camera. Okay. Okay, you have to explain it out. you are also paying for it? What? You are also paying for it? मैं बोली for GoPro to pay extra 100. मैं किसके कौन सी मांगना है? इसकी sign लगाने के साथ. No. Are you going to use it? Are you going to use it? Then 100 bucks you have to pay to the I forest department. honestly don't know, so I don't mind saying it in advance. Okay. Because Can we do it? Any sort of jerks on your knees, 2 trek poles are always advisable, right? So when you're using this, make sure that you're taking small steps. We call it baby steps. So you breathe in from your nose, breathe out from your nose as well, not from your mouth. Why? You get more energy. You get exhausted, you also. breathe in, like, I mean, your throat will become sore and dry, Yeah. right? Because you are taking in air from your mouth, right? So to avoid that, make sure that you are breathing from your nose. It might feel difficult, but it will help you in acclimatization as well, alright? So make sure that you breathe in and breathe out from your nose, alright? And keep sipping water. Everybody is carrying at least 2 liters with them. No. 1 liter. 1 liter with you. Okay. Okay, there is a water source on the way, so you can carry 1 liter with you, and then we can refill our water bottles. Okay. And make sure to take small steps. Okay. Any doubt? No. Okay. And if it is one, there's a single track pole, Single trek pole also you walk like this. I mean, Small steps. there's no Small strategy as such. yeah, like this you can walk, and small steps you can take. And we place the heels first. No, heels while descending. Okay, so now when we ascend normal. Yeah, I mean your toes and mid part will get get down first. Alright, thank you. So can we make a circle, proper circle here? Naveenji, can you come? Yeah, sure. Alright. So we'll do some muscle activation, ankle rotation Okay. You can leave a track pole. on one side. Yes. Would you be able to just take care of that in case it falls? It will not fall, just it wouldn't fall. Okay. On one side, 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side, 1, 2, 3, 4, 5. Swap. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Let's jog in circle. One side. Jog. Come on, fast. Okay. Now on your toes. Everyone on your toes. On your heels. Everybody on your heels. Okay, now let's hop. Little bit fast. ये वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं बैच के साथ. Okay. Slow down. Slow down. I didn't ask you to stop. I was wondering. Come on, fast. Hop on place. Come on, fast.
Okay, awesome. All right. Now say as I say. Say as I say. Say as I say. Do as I do. Do as I do. Do as I do. Do as I do. Say as I say. Say as I say. Do as I do. Do as I do. Jacuzza position. Jacuzza position. Do it yourself. Check. That's good. So we have that Gaia app, right? So that will do. Dogs usually go along. तो दोस्तों ट्रैक की शुरुआत हमारी हो चुकी है। सारी ब्रीफिंग, सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे दिए गए हैं। थोड़ा बहुत वार्म अप भी हो गया है। ब्रेकफास्ट तो हमने कर ही लिया था सुबह 7 बजे। इस वक्त लगभग 9 बज रहे होंगे। धूप अच्छी निकली हुई है, सुंदर नज़ारा है, पहाड़ों में बर्फ़ है। और ये 7 जो ट्रैकर्स हैं अब निकल पड़े हैं दयारा बुग्याल की ओर। और हमारे पीछे जो है वो ट्रैक लीडर जो हमारी है आयुषी, वो थोड़ी देर में आएगी। हमें आगे निकलने को कहा गया है। Rifle. We collected 14 kgs. Oh, that's good. Tell me one thing, I mean, okay, India Hikes is sensitive about this. The other guys are not. Yeah, they are not. Sadly. There are a couple of organizations like Biggoth and TPH who have started following it. But I think, I mean, it's like, There's one more plastic for over here. them it's just like following it. But they don't really. But One of the reasons I joined because of religion. Not because of what you believe in. Okay, veganism not religion. So those people who are hardcore born non-vegetarian are now converting to vegan. तो अब चढ़ाई चढ़ने वाले हैं हम लोग। धीरे धीरे चढ़ाई आ रही है। यहाँ से रास्ता पकड़ लिया हमने। I'll tell you one thing. What do you want to know? You said that you did your studies in the US, right? No, I've done courses from US-based institutes. Online courses. They have their branches in India as well. I mean, not Wesleyan University. I did that course online. How do you put the possible? How do you guys do it? I might do it for 1.5 years more. You be in the front. Do one thing. Don't stay behind. Otherwise you'll leave behind. Yeah. Be. सामने सुंदर पहाड़ों का दृश्य शुरू हो गया है। काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। धूप हल्की हल्की निकली हुई है, पसीने भी आ रहे हैं, पर भी थकान तो बिल्कुल नहीं हुई है क्योंकि अभी जस्ट 10-15 मिनट हुए हैं वॉक करते हुए। वो रहे सामने हमारे इंडिया हाइक्स के ट्रैकर्स जो जा रहे हैं, जिनमें कुल 5 लड़कियां हैं और हम 3 लड़के हैं। चलते हैं आगे, ठीक है।
So we know about the orangutan and the chimpanzee, that they make their own tools to forage, to play, things like this. But we don't know about crows. So there is this breed in बढ़िया ट्रायल शुरू हो रही है New अब Caledonia. ट्रैकिंग की ट्रायल I think है ना? that's gonna start now. This path is looking rocky and very good, leading us towards the mountain. I think the trek route is very nice. Yeah, actually. It's very nicely laid down. It's not Quite difficult. gradual. It's very gradual. Yeah. It's not very steep. So New Caledonian crows, they also make their own tools to forage and eat and to play. New Caledonian crows. Caledonian crows. And there is a breed in Japan, carrion crows. So what they do is they make use of the human activities. So if they have a walnut and they need to break the shell of it, so they'll put it ahead of a car, so that when the car runs over it, the shell is broken. Oh, wow. And then once it stops, वो red signal आता है. Once it stops, They know it, how where Yeah. to keep it. Wow. exactly, and then they eat the walnuts out of it. Very Awesome. smart. Huh? ये तो कुछ भी नहीं है. When I went on those treks ना दूसरे, उसमें तो इतना पतला. No, there is no data in it. There is no data. Just for watching. Are there binoculars like that that can transfer data, what you see, anything, record? No. There is no binocular like that. Data transfer is not possible in binoculars. Zoom and then transfer. It just helps you in optical vision, viewing distant objects. टेरेस पे बैठ के birds को पढ़ती थी, and then I used to go to a nursery. So वहाँ पे पूरा there is also another beautiful book. Look at this beautiful snow-clad mountains. It's looking amazing. Human body में appendix है, there's no use for it, but you still have it. बॉर्डर कर रहे हैं बस बाकी कुछ काम नहीं। दोस्तों हमें आधा घंटा हुआ है ट्रैक करते हुए और यहाँ से रोडोडेंड्रॉन के पेड़ और उनके फूल दिखने शुरू हो गए हैं। ये देखिए सामने बुरास के फूल आपको नजर आएंगे, लाल लाल ये पेड़ों में लगे हुए हैं। ये है रोडोडेंड्रॉन, जो आपको रास्ते में हर जगह दिखेंगे। उत्तराखंड की वादियों में, देवभूमि में, दयारा बुग्याल में और भी कई जगह ये पेड़ मिलते हैं और हमें तो अभी से दिखने शुरू हो गए। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ नज़ारा।
fruits and fruits we ate in the morning, right? So that's the amount of sugar we need. That's all. Yeah, we don't need more than that. Like Sugar is not doing any good to the body. I personally, I've never had any sort of यहाँ पे 5 मिनट बैठना चाहिए. ये अच्छा एरिया है. and हम लोग 15 किलोमीटर Yo guys, how are you feeling? heavy Awesome. backpack, Huh? 20 kgs का backpack. Awesome. Feeling awesome? Yes. This is Insta. Do you want to take a picture from there? Yes. This is Insta point. उसके बाद लॉकडाउन ने ऐसी हालत कर दी सबके कि घर आना पड़ा. तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ क्यों ना अपने जंगलों में कुछ हो किया जाए. मतलब कैसे कि इंडिया एक्स काम कर रही है, इनके साथ जुड़ना चाहिए. बहुत अच्छा काम है. जैसे कि अभी इनके वो 4 पहलू हैं, अभी मैंने बता दिया होगा. इसलिए तो हम अपने पहले रेस्टिंग स्पॉट पे पहुंच चुके हैं. खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से. बहुत ही सुंदर गंगोत्री रेंजेस यहाँ से दिख रही है. सामने जो पहाड़ देख रहे हो इसे कहते हैं गंगोत्री रेंज, जो कि इस वक्त बादलों से और बर्फ़ से ढके हुए हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य हमें प्रदान कर रहे हैं. और कुछ देर के लिए हम इन वादियों का आनंद उठाएंगे और फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे. है ना, सुंदर लग रहे हैं ये माउंटेन्स. I think this range will be visible when you और दयारा बुग्याल का जो रूट है वो इस तरफ जाता है. अभी हम लोग इस तरफ ट्रैक करते हुए दयारा बुग्याल की तरफ जाएंगे. हमारे साथ है प्रकाश भाई जो हमारा इस पूरे ट्रैक के दौरान हमारा साथ देंगे, और आयुषी. Hello. हेलो, चले लेट्स वॉक. यार नवीन भाई, दयारा को आपने क्या नया नाम दिया था आज? दरिया बुग्याल. दयारा बुग्याल, also known as दरिया बुग्याल by नवीन. मस्त है नज़ारा. ऑब्वियसली यहीं रहते हो क्या इन पहाड़ों में? कहाँ पर है घर आपका? ये गाँव में. हाँ, नीचे गाँव में घर है. नीचे रैथल में या दयारा में? रैथल में. किसी का घर नहीं है. दयारा में किसी का घर नहीं. घूमने अच्छा. वहाँ कोई नहीं रहता. जैसे वहाँ छानिया है ना, अच्छा तो अब वहाँ गाय जाती है बुग्यालों में ना, अच्छा. चूगने के लिए. क्योंकि अब चूगने का लिए बढ़िया घास आ रही ना हरी से. हाँ तो वहाँ 4-5 महीने जाए लोग भी रहते हैं हाँ. उनके साथ. ओके. जैसे अभी शाम को आप देख सकते हो काफ़ी हाँ. हमें काफ़ी पहले ऐप बनाया तो ओनरशिप देखने को मिल जाएगी. स्नो देखने को मिलेगी काफ़ी वहाँ पर. हाँ? काफ़ी मिल जाएगी. अच्छा, बढ़िया. और वो जगह कितनी खुली लग रही है आपको? लग रहा है बाकी बात आपको चलते सब कुछ दिख ही जाएगा रास्ते में. अभी मैं बता दूँगा आपको, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा. हाँ बताओ मत. आगे जब जैसे आएगा ना तब मज़ा आएगा. छाव दे दे. भालू है यहाँ पर? पड़ेगा उधर से रास्ता खराब है ना, वहाँ से एक छोटा सा पत्थर गिर गया ना. अच्छा उसके साथ हो सकता है. अच्छा. रिस्की है. मतलब अगर चैलेंजिंग चाहिए ना तो अच्छा खासा. हिमालयाज में भी बहुत सारे ट्रैक हैं. I've done them. like rock climbing you have to do. Yeah. I stayed in Mumbai for 3-4 years. No, there's a rest point. Rest point up here. यहाँ पे. Oh, this ये is nice. ये ना रेस्ट पॉइंट. अच्छा, they are no like in between. तो हम लोग अपने रेस्टिंग पॉइंट पे पहुँच चुके हैं. ये हमारा रेस्टिंग पॉइंट है अभी का. नींबू पानी. थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे I hate that. और फिर निकलेंगे. और यहाँ से व्यू देखो, बहुत ही सुंदर व्यू है. What was the Dayara Bugyal तो easy सा ट्रैक है.
So हो जाएगा. Like I mean, she was literally in that thought. She didn't even pack properly. मतलब 2 jackets लेकर आई and नीचे पैंट एक ही लेकर आई. And what happened was, first day जाने लगे गुई से चिलापड़ा में, it started to snow heavily. This last March. So it started to, मतलब पहले windy से शुरू हुआ and then it started to have sleet. So sleet क्या होता है कि snow जैसा दिखता है, very thin. When it hits the ground, it becomes water. It's like that. So it started with that. पहले wind, sleet, and then उसके बाद started to snow, like heavy snow. Dining tent collapsed. Oh God. हाँ ऐसा हो गया, नीचे पूरा गिर गया. And all the एक टेंट में, so since trekkers only pitch the tents, तो वो एक टेंट में पेग ठीक से लगाना भूल गए, तो वो टेंट भी इधर उधर टॉपल हो रहा है, उड़ रहा है, ये सब हो रहा है. मतलब पूरा ऐसा हो गया सीन. और फिर उसके बाद पता चलता है बैग में देखा तो 2 लेयर्स और नीचे पैंट के नाम पे एक पैंट. माय गॉड, दैट लेडी, ओ माय गॉड, शी शिवर्ड ऑल थ्रू आउट. उसके बाद ट्रैक मेट्स ने थोड़ा बहुत शेयर करके उनको थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह दिए एंड सॉक्स वगैरह भी. शी डिडंट गेट ऐसे मच. सो वो भी गीले हो गए थे क्योंकि पूरा स्नो से हो गया था. एंड देन व्हेन यू आर वॉकिंग इन दैट स्नो वाला ग्राउंड, तो आपके पैर भी गीले हो रहे थे. एवरीबडी इज ओके विथ हिंदी ऑल्सो, राइट? तो उनके पैर भी गीले होते जा रहे थे. तो इट वाज लाइक टू चिली, टू विंडी, एवरीबडी इज एंजॉयिंग एंड दिस लेडी शिवरिंग लाइक एनीथिंग. फिर उसके बाद सबने उनको अपने अपने कपड़े दिए और अच्छे से रात भर रखा. बट देन उसके बाद दिस लेडी अंडरस्टूड कि भाई पांगड़ चूल्हा कर लो, रुपिन पास कर लो, बुरान घाटी कर लो, दहरा बुग्याल जैसा माउंटेन भी आपको समझा सकता है कि नेवर टू अंडर एस्टिमेट माउंटेन्स और नेचर. That's true, very true. You should come always fully prepared for any vagaries of mountains. पैकिंग भी प्रॉपर है, फिर फिजिकल फिटनेस भी प्रॉपर है. सारी चीज़ अगर सही है तभी सही है, क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज वन माउंटेन विच विल चैलेंज यू. मिलिंद सोमान को भी बुलाओगे तो उनको भी एक माउंटेन होगा जो चैलेंज करेगा. सो व्हेन यू आर एबल टू डू लेट्स से दयारा बुग्याल एकदम नाइसली प्रॉपरली, उसके बाद यू गो टू सम डिफ़िकल्ट ट्रैक लाइक गोयचला, तो वहाँ पे शायद आपको चैलेंज मिलेगा. उसके बाद यू गो टू पांगड़चूला, उसके बाद यू गो टू कालिंदी खायर. तो हर जगह पे वो माउंटेन रहेगा. और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर पांगड़चूला के बाद अगर आपने गोयचला वापस गए तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए ईजी बन जाएगा. नेचर कैन थ्रो एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस ऑन अस. एंड करंट हेल्थ, कभी ऐसा लगता है कि एकदम हेल्दी है पर पता नहीं थोड़ा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा होगा या थोड़ा फिट नहीं है, वेट बढ़ गया. तो वो चीज़ हमेशा कभी नेवर अंडर एस्टिमेट, क्योंकि रेस्पेक्ट मांगते हैं नेचर. इट कैन चेंज. I feel it can feel the vibes. I mean, I don't know, like I have experienced. ऐसे कुछ भी स्टोरी वगैरह बता रहे होते हैं ना, तो पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ ऐसे आवाज़ें होने लग जाती है एकदम राइट पॉइंट पे. एंड देन उसके बाद कभी ऐसा होता है कि मतलब ट्रेल से जा रहे हैं तो पता लग रहा है कि पूरा स्काई क्लियर है, पता नहीं कहाँ से क्लाउड्स आ जाएंगे और वो बरसने लग जाएंगे. तो वो बहुत हद तक ग्रुप पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट वाइब्स आर यू कैरिंग. बिकॉज इतना बैक टू बैक किया ना, तो अब समझ में आता है कि किस तरीके के लोग के साथ कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है. तो वो चीज़ भी है. तो लाइक दिस द एंटायर कंक्लूजन और एम टू शेयर दिस स्टोरी वॉज टू काइंड ऑफ continue with the same spirit that we are carrying. I mean, respecting the nature and going ahead with that spirit. Our vibe wanted snow yesterday and sunlight today, so we've got so far. Sunlight. I actually was saying that yesterday rain हो जाए and आज ना हो. तो रेस्टिंग स्पॉट में रेस्ट करने के बाद, थोड़ी कहानियाँ सुनने के बाद आयुषी से, और सुंदर नज़ारों का आनंद लेने के बाद अब हम चल पड़े हैं दूसरे पड़ाव की ओर.
वक्त हम लोग काफ़ी घने जंगल से गुजर रहे हैं देहरा बुग्याल की तरफ, और धीरे धीरे हम हाइट गेन करते जा रहे हैं। देखिए यहाँ से सीधी चढ़ाई है, और थोड़ी देर के बाद एक पॉइंट आएगा बोल्डर सेक्शन के बाद, वहाँ थोड़ा हम रेस्ट लेंगे। इसके आगे चढ़ गए, शाबाश। Oh yeah, now I see. It's not easy to do. कहाँ से लगता है easy? It's not easy. चढ़ गए, वेरी गुड। नीज नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रिया। अब बारी है अदिति की। अदिति, पहले पाँव का ग्रिप प्रॉपर होना चाहिए और एक हाथ का ग्रिप। 3 पॉइंट होने चाहिए देते। Elbows और knees use नहीं करना। जो गलती हमने करी तो मत कर। अब आ जाओ। I'm not able to find myself. ये जाएगा। ये? Yes, have the shirt back. अच्छा नीचे। नहीं हो जाएगा, don't be slow, ठीक होगा। पहले left, हो जाएगा, push yourself, push yourself। नहीं हो। हो जाएगा, please let me। यहाँ से होगा, कुछ नहीं होगा, elbows उठा वहाँ से, push कर हम yes, push yourself, remove your knees from there, push yourself, नहीं हो जाएगा, डोंट गिव अप। हो गया बस, थोड़ा सा ही है। वन लास्ट लेग, एक स्टेप और है, बस हो गया, एक स्टेप, वन मोर स्टेप, कम ऑन। अरे ग्रिप पकड़ कर, ग्रिप बना के रखो, शाबाश। हाँ भाई, उसके बाद उसको ज़्यादा करना है। Come on. No, not this one. There only. Should I give you a hand? No, let her do it by herself. चलो, good. वहाँ पे नहीं, हाँ, नहीं push, come on, push, go for it. Good. लास्ट पुश है बस, एक पुश और देन यू आर अप। No, don't put your knees there. Yeah, knees should be away from the rope. Come on, push yourself. Push yourself, yes. Go for it. Good. Come on, you can do it. Go for it. Nina, come on, push yourself. Come on, nice. वेरी नाइस। चलो लास्ट, पुट योर बॉडी वेट फॉरवर्ड, नीज के ऊपर नहीं, नीज में इंजरी आ जाएगी। Back की लगी, I can't be seen.
कार्डियो इलेक्ट्रिकल या कौन से रास्ते से? अच्छा 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 अच्छा, वो रिस्की है। अब हो गई है पहाड़ों की बरसात शुरू, इसलिए हमने अपने अपने पॉन्चो और रेनकोट पहन लिए और निकलते हैं अब आगे। इस वक्त हम घने जंगल से गुजर रहे हैं। चारों तरफ ये देखिए बड़े बड़े ये पहाड़ जंगल के, और पीछे वो बादलों से और बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़, और हमें यहीं से गुजर के जाना है दयारा बुग्याल की तरफ। लेट्स गो। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई अब, और बादल गरजने की आवाज़ें भी आ रही हैं। सब जादू की तरह लग रहे हैं। हाँ, सब जादू की तरह लग रहे हैं। बिल्कुल सारे जादू की तरह लग रहे हैं अभी। सब ने अपने अपने पॉन्चो रेनकोट पहन लिए है बरसात से बचने के लिए। हेलो अदिति। लगता है तेज़ बरसात होने वाली है, क्योंकि बादल बड़े ज़ोर से गरज रहे हैं, और बादल भी काफ़ी घने छाए हुए हैं। दोस्तों अब तेज़ बरसात शुरू हो चुकी है, ज़बरदस्त, और ओले पड़ने लग गए भाई साहब, ज़बरदस्त। ये देखिए आगे चलो, आगे 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 पेड़ के आगे ज़बरदस्त ओले पड़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अचानक से ये ओले पड़ने लगे, बहुत ही तेज़ ज़बरदस्त हैवी फॉल हो रहे हैं यहाँ पर। देखो शानदार एक्साइटिंग माहौल हो गया है। बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं ज़बरदस्त, और धमाधम ओले गिर रहे हैं, धमाधम। चलते जाओ। लोग रुक गए पेड़ के नीचे रेस्ट लेने के लिए। हाँ, ओले नहीं गिरनी चाहिए, क्यों, उससे क्या होगा? अच्छा भाई, अच्छा बड़े बड़े भी गिरते हैं क्या? तो पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। चलो किसी पेड़ के नीचे रुकते हैं, ये छोटे हैं ना। हाँ,
अब उसके बरसात में ऐसे ही जाना पड़ेगा। रेन कोट पहने हुए हैं तो सुरक्षित है, थोड़ा बचाव है, लेकिन ठंड भी काफ़ी तेज़ पड़ गई है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ट्रैकिंग के यही मज़े हैं, नेचर के हर रूप का आनंद उठाने का मौका मिलता है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी बहुत तेज़ ठंड, कभी आंधी और कभी तूफान, ये सब देखने को आपको एक ट्रैक में सब कुछ मिलता है, इसीलिए ट्रैकिंग का मज़ा आता है। बहुत हो गया जाम, ठंड लग रही है अभी हाथों में बहुत तेज़। यहाँ थोड़ी धूप है। इधर से वो देखना पड़ेगा। हाँ वहाँ से दिख रहा है। यस 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 उसमें रेड और इधर जो है। स्काई ब्लू कलर का एक बिल्डिंग है, फर्स्ट बिल्डिंग। यस यप चलो चलो लेट्स गो। ऑल गुड या ऑल गुड, वॉकिंग स्लोली, चलो ऑसम। नवीन या ऑल फाइन। चलो बढ़िया। ये आग लगाई हुई है यहाँ पर। यहाँ पे भेड़ बकरियाँ होती है ना, तो शाम को यहाँ इकट्ठा होकर रहते हैं, ये उनका डेरा है। अच्छा, तो दोस्तों जो भेड़ बकरियाँ चराने के लिए आते हैं यहाँ पर शेफर्ड्स, वो यहाँ पर अपनी जगह बनाए हुए हैं उन्होंने, और शाम के समय वो यहाँ से चले जाते हैं। दिन में यहाँ थोड़ी लकड़ियाँ वगैरह चलाते हैं गर्मी के लिए, अपनी भेड़ बकरियों को चरा करके शाम को वो अपने घर लौट जाते हैं। ये देखिए, अभी शायद वो निकले हुए हैं अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के, है ना, चराने के लिए। तो हम काफ़ी ऊपर अब आ चुके हैं। यहाँ से जो हमारा जो पहला बेस कैंप था रैथल, जहाँ से हम आज सुबह निकले थे, वो दिख रहा है हमें। नीचे जो छोटी छोटी, अगर इस कैमरे में मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है जो छोटे छोटे घर बने हैं, वो है रैथल गांव, जहाँ पर हमारा बेस कैंप था कल रात का। और सामने जो है गंगोत्री रेंज दिख रही है हमें, पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ से, और पक्षियों की भी बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही है। अभी हम पहाड़ चढ़ के काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट मेडोज़ लाइक लैंड देखने को मिल रही है। यहाँ से आई थिंक शुरुआत हो चुकी है, और थोड़ी देर में हम नयाता जो बेस कैंप है हमारा, जो पहला बेस कैंप है आज रात का, पहला नहीं दूसरा, पहला तो रैथल था, आज हम नयाता जाएंगे, जहाँ पर हम रुकेंगे वहाँ पहुँचने वाले हैं। और यहाँ से देखो मेडोज़ दिखने शुरू हो गए हैं, और सामने आई कैन सी लॉट ऑफ cattles which are grazing।
भेड़ बकरियाँ कई सारी हैं जो यहाँ पर चर रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, सुंदर नज़ारा है, काफ़ी शांति है यहाँ पर। कुछ बीच बीच में भेड़ बकरियों की आवाज़ें आ रही हैं और चिड़ियों की आवाज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए है ना ब्यूटीफुल व्यूज़, क्या सुंदर नज़ारा देखो यहाँ से। ऊपर बादल और अच्छी धूप निकली हुई है, मज़ा आ रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये है हमारा स्पॉट आज रात का। यही है ना बेस कैंप हमारा? नयाता यही है? नयाता नयाटा नयाटा। तो पहुंच गए हम नयाटा। सामने वो जो पीले और हरे रंग के टेंट देख रहे हो आप, 2 टेंट लगे हुए हैं। आज रात का जो हमारा स्टे होगा वो नयाटा में, यहीं बेस कैंप में होगा। काफ़ी अच्छी जगह है, फ्लैट लैंड है, पानी का भी स्रोत सामने में ही है, पास में ही पानी की हल्की सी जो ट्रिब्यूटरी है वो बह रही है, तो जहाँ से हम पानी आराम से कलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कुछ ओल्ड कंस्ट्रक्शन है जो कि टूटे फूटे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर नज़ारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इन्हीं म्यूल्स पे हमारा जो सामान है ऑफ, जो हमारे बैग्स है, स्लीपिंग बैग्स, और जिन्होंने ऑफलोड किया था अपने बैग्स, इनमें ही लाद के लेके आए गए यहाँ पर। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर आराम कर रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं, और हम भी अब आराम करते हैं, अंदर चलते हैं। यहाँ से बाहर चले गया 7 साल पहले, और एवरी टाइम यहाँ पे आता हूँ, तुरंत जाना होता है, सीखने को टाइम ही नहीं हुआ। ना वहाँ चलाते हो ना यहाँ चलाते हो? वहाँ नहीं चला सकते ना, मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है। बच्चे का कैंप उन्होंने संभाला कि नहीं संभाला, झंडा फहराया, अरे वो पहुँच गए। Now let's do some lunges. One leg ahead and knees behind your toes. पीछे वाले को नीचे मत रखो. 1. Alright. Now we'll do hamstring stretch. So bring one leg ahead and toes facing your face. Toes facing your face. Yes. 2, 3, 4, 5. Alright. Let's do some tricep stretch. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Let's do some tricep stretch. 1, 2, 3, 4, 5. कर ले अच्छे से। 1, 2, 3. नहीं तो रेलगाड़ी बन जाएगी। Okay. Now turn towards your right. I don't like this. अभी सही तरीके से करना है सब। भाई मजा आ रहा है। मेरे साइड में है सब। चलो।
Okay, group hug. From the sunlight to snow or hail to normal. मैं हमेशा फैसिनेटेड हो जाती थी सडनली, लाइक मैं वहाँ पे बैठी हुई पूरी लो, उसके बाद उनको देख के और भी पीपल ऐसे करके वो बोली, ठीक है। फिर उसके बाद वो ना मुझे देख के ऐसे वहाँ पे रुक गए, ठीक है। फिर उसके बाद उनको मेरी मम्मी ने बताया ऐसे बातों बातों में कि ये तो हो गया, इसका नहीं चल रही है यहाँ से। तो उन्होंने फिर मुझे हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स दे गेव मी, एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो हमारे साथ चलो। उसके बाद यू वोंट बिलीव, मेरे को पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई थी, आई वाज लाइक लिटरली रनिंग विद देम, एंड माय मॉम इज लाइक मैं भी तो ये खिला रही थी तो ऐसा हुआ, चलने लगे वहाँ से। फिर उसके बाद एक छोटा सा बोल्डर आता है, अब 9 इयर्स ओल्ड के लिए तो छोटा बोल्डर भी बड़ा ही बोल्डर रहेगा ना। तो उन्होंने बोला इसको चढ़ो, मैंने बोला क्लाइंब क्यों करना है, यहाँ पे ट्रेल है, क्यों करवा रहे हो क्लाइंब वहाँ पे। और फिर मुझे कुछ आता भी नहीं था उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि लाइक वंस यू डू दैट ऐसे आपको बहुत ऐसे कॉन्फिडेंट फील होगा। अच्छा we should, हाँ ठीक है, go ahead. दो सेकंड की। No, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, तो उन्होंने ना मुझे वहाँ पे जाने के लिए बोला, तो मैं जाने लगी, एंड आई वाज लाइक स्लिपिंग अगेन एंड अगेन। उसके बाद दे टोल्ड मी द एक्चुअल टेक्निक हाउ टू क्लाइंब इट, एंड देन एज सुन एज आई ऐसे मतलब इतना गिरने के बाद फिर उसके बाद जैसे जैसे वो टेक्निक पकड़ के और फिर जैसे मैं ऊपर चढ़ी, उसके बाद जैसे एज आई वेंट अप आई वेटेड फॉर माई मॉम टू अराइव, एंड उसके बाद जैसे मम्मी ये आई डिड इट ऐसे करके मैं जोर से चिल्लाई, और उसके बाद तो क्या कॉन्फिडेंस आया था, यू वोंट बिलीव कि हेमकुंड साहिब 19 किलोमीटर का होता है, वो मैंने फटफट किया था फिर। क्या बात। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं बेस कैंप में। बेस कैंप का नाम क्या है? न्याता बेस कैंप। न्याता बेस कैंप में हम लोग थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हैं, और पहुँचते ही यहाँ पर 10 मिनट के अंदर बरसात और ओले गिरने शुरू हो गए हैं। बहुत इस बार बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ, और अभी टेंट भी हमारे नहीं लगे हैं। ये देखिए बहुत भारी भरकम ओले गिर रहे हैं, ज़बरदस्त बरसात हो रही है। मौसम अचानक से बदल गया है, within a matter of 10 minutes there is sudden change in the climate, huge fall, huge rainfall. See, just take a look. कुछ करूं मैं? कुछ करना मुझे? ना कुत्ता भी बेचारा बच रहा है बरसात को ओले से। ज़बरदस्त ऐसे बदलता है पहाड़ों में मौसम। देखा कितनी तेज़ी से मौसम बदला है। विदिन अ मैटर ऑफ 10 minutes द क्लाइमेट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। नाउ इट्स सुपर कोल्ड ओवर हियर एंड देयर इज थंडरस्टॉर्म एंड ह्यूज हेल स्टॉर्म ऑन दीज माउंटेन एंड न्याता टॉप। क्या थोड़ा व्यू ब्लॉक कर रहे हो, मज़ा आ रहा है? व्यू ब्लॉक हो रहा है, बाकी सब मजा आ रहा है। व्यू देखो, व्यू ही व्यू है चारों तरफ। हेलो पीपल, व्हाट्स अप? एवरीथिंग इज अप। Wow, this is टेम्परेचर, so beautiful, dude. बट टेम्परेचर इज डाउन। But ठीक है, it's looking so beautiful. Enjoy this. कहाँ जाना भी है यहाँ पे? लंच यहीं करना है क्या? चलो भाई, लंच रेडी हो गया हमारा। अब सैलड आ गया है और सब्जी भी आ गई है। Guys, come in a circle.
लंच हो रहा है। यही हो रहा है लंच? हाँ। लंच यहीं करेंगे हम लोग आज, कम लोग हैं ना, शूज खोलने पड़ेंगे। बीच में यहाँ सब साइड में रख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं बीच में रख दो। Should we start taking or wait? Yeah, start taking now. मैं क्या बोला, गोभी की सब्जी होंगी इसलिए मंचूरियन बोल रहा सो वी हैव कड़ी, थोड़ा यहाँ भी डाल देना। थैंक यू। हाँ पकौड़ा एंड करी एज वेल, दैट्स इट, थैंक यू। सो वी हैव करी, वी हैव राइस, वी हैव पापड़, वी हैव सैलड एंड चपाती एज वेल। नहीं नहीं इसमें ट्राई करना पड़ेगा। हाँ इतना ही बट थोड़ा कड़ी से डिमोड है इतना तो नया था बेस कैंप पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपना लंच करते हैं। लंच करने के बाद हो सकता है कि बरसात वगैरह कम हो जाए, तब हम बाहर मौसम का एंजॉय करेंगे। Lying won't serve any purpose. Can you help me with rice? Yeah, It's sure. far. Just let me know. I'll serve. Don't come over here. Have you ever had curry pakoda before? तो दोस्तों जब हम लंच कर रहे थे तो तेज़ बरसात हो रही थी और ओले गिर रहे थे, और जैसे ही लंच हमारा ख़त्म हुआ कितनी प्यारी धूप निकल आई है। आप ज़रा देखिए यहाँ पर मौसम अचानक से 10 मिनट के अंदर चेंज हो गया है। बहुत ही सुंदर मौसम हो गया इस वक्त। 10-15 मिनट पहले यहाँ पर तेज़ आंधी तूफान चल रहा था और ओले गिर रहे थे, ज़बरदस्त हेल स्टॉर्म हो रहा था, और हम सब बचने के लिए इस बड़े वाले टेंट के अंदर घुसे हुए थे। मैंने उस वीडियोज़ को भी कैप्चर किया हुआ है, आपको दिखाऊंगा मैं, और काफ़ी मज़ा आ रहा था उसमें, ऐसे मौसम में खाना खाने में। और यहाँ चारों तरफ बर्फ़ की एक छोटी छोटी लेयर जो है ना, ओलों की लेयर, ये पूरी बिछी हुई थी, और 10-15 मिनट के अंदर ये सारी साफ़ हो गई। ये देखिए, और कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। इस वक्त लगभग मेरे ख्याल से 3 बज रहे होंगे, मेरे को एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है, बट 2:30 से 3 बजे का समय है ये दोपहर का। और लंच हमने कर लिया और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे टेंट भी लग गए हैं, हमने अपना सामान टेंट्स में अंदर रख दिया है। तो अगर आप इंडिया हाइक के साथ आओगे तो आपको ऐसे टेंट्स मिलेंगे हिलमैन्स के, जिसके अंदर 2 लेयर्स होती है, और ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के टेंट्स है, जिसमें आराम से 2 बंदे अपने सामान के साथ रात में कंफर्टेबली सो सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन बरसात और हेल स्टॉर्म में भी उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर 2 लेयर है। पहली जो बाहर लेयर है वो आपको बरसात से बचाएगी, और एक अंदर की जो लेयर है वो आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, 2 लोग कंफर्टेबली सो सकते हैं, ओके, नॉर्मल साइज़ के लोग। तो ये रहा मेरा टेंट हिलमैन एक्सपीडिशन का, और वो है जो कुक्स है और जो यहाँ पर जो स्टाफ है जो हमारे लिए खाना वाना बनाते हैं और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वो उनका टेंट है। तो ये देखिए अंदर कैसा है नज़ारा। मैंने अपना सामान रख दिया। ये दोनों बैग्स मेरे हैं, मनिंदर भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके Aditi, just a minute, I'll just take one picture. Okay. और बर्तन वगैरह धोने के लिए, खाना खाने के बाद अगर आपको बर्तन धोने हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक वॉशिंग एरिया बनाया हुआ है, जिसमें पानी सेव करने के लिए इन्होंने इस तरह के कॉन्ट्रैप्शन लगाया हुआ है, जिससे थोड़ा पानी कम निकले और कम वेस्ट हो, और कम पानी में हम अपने बर्तन को आसानी से धो लें। तो और साथ में इस तरह के सॉ डस्ट जो है वो भी रखे हुए, ताकि अपने बर्तन को अब अच्छे से क्लीन कर सको। ये देखिए, इट्स वेरी गुड प्लेस। ये जो लोकेशन है मेरे हिसाब से तो नयाता में वन ऑफ द परफेक्ट लोकेशन बेस कैंप करने के लिए। बहुत ही सुंदर एरिया है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। ये एक तरह का वैली है, और पानी की भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो स्ट्रीम्स है, वाटर स्ट्रीम्स है बगल में जो जाती है, जहाँ से हम पानी कलेक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी हमें पानी जो है वो ध्यान से यूज़ करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, चाहे हम पहाड़ों में हो चाहे कहीं पर भी हो। और नीटनेस और क्लीनिनेस आपको चारों तरफ दिखेगी। यहाँ पर कोई रैपर्स, कोई भी गंदगी नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हमारे पहले भी बहुत से ट्रैकर्स आए होंगे इंडिया हाइक के साथ, बट इंडिया हाइक के साथ जो भी ट्रैकर्स आते हैं वो ग्रीन प्लेज फॉलो करते हैं और गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाते। इनफैक्ट जो भी उनको रास्ते में प्लास्टिक्स वगैरह मिलते हैं वो कलेक्ट करते हुए जाते हैं, अपने येलो कलर के जो ग्रीन बैग्स होते हैं, येलो कलर के बैग्स होते हैं, उसमें कलेक्ट करते हुए जाते हैं। और इन्होंने बहुत सारा प्लास्टिक इन पहाड़ों से कलेक्ट किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पहाड़ों को साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अब अच्छी धूप का आनंद लेते हैं, और मैं आपको इन वादियों का नज़ारा दिखाता हूँ। चलो चलते हैं।
सामने देख सकते हैं भेड़ बकरियां चल रही है। और ये जो डॉग्स है ये हमारे साथ ही ट्रैकिंग करते हुए आए हैं। हमारे साथ 3 डॉग्स आए हैं इनफैक्ट, एक यहाँ सो रहा है, एक वहाँ सो रहा है और एक कहीं होगा। और काफ़ी आनंद में धूप सेक रहे हैं ये। अभी थोड़ा टेंशन देने का एक अचार का पीस है which I have put. हाँ उसी में डालना था ना। ओके वो सामने देख रहे हो आप, कितने सुंदर पहाड़ नज़र आ रहे हैं बादलों से और बर्फ़ से ढके हुए जो चादर है उन पहाड़ों में कितनी खूबसूरत लग रही है। ये जो पूरी धूप जो आ रही है उन पहाड़ों को रोशन कर रही है और इतनी प्यारी धूप लग रही है उसमें, देखते ही बनता है ये नज़ारा। बहुत ही मज़ा आ रहा है। सामने देखिए नज़ारा ब्यूटीफुल। तो वो जो रेंजेस है वो एक्चुअली गंगोत्री रेंजेस है, यानी कि गंगा नदी वहीं से होते हुए शहरों की ओर जाती है। चलिए हम बाकी एरिया की तरफ चाहते हैं। बाथरूम कहाँ है? किधर है? अच्छा बाथरूम तो हमने देखा ही नहीं यार। ये बोल रहे कि बाथरूम पे दिखाओ, तो आपको बाथरूम पे दिखा देता हूँ। वो जो है स्टेट ऑफ द आर्ट बाथरूम है, एकदम फुल लग्जरी बाथरूम आपको मिलेगा यहाँ पर, जिसमें कि पानी की सुविधा अवेलेबल नहीं है। अगर आपको जो भी साफ़ सफाई करनी है वो केवल टिशू से करनी है और वहीं डंप कर देना है। सारा अपना जो सामान है जो आप ले करके आए हो वो वहाँ डंप कर देना है, ठीक है। यहाँ लेकर के जाओगे ना, वहाँ पर कुछ तो डंप करोगे। तो सोलर पैनल भी यहाँ पर लगाया हुआ है इन लोगों ने, ताकि थोड़ी बहुत लाइट की और चार्जिंग की सुविधाएं मिल सके यहाँ पर। ये देखिए अच्छी धूप आई है, तो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और फटाफट अपने सोलर पैनल से थोड़ी सी एनर्जी स्टोर कर लेनी चाहिए सूर्य की, है कि नहीं, ताकि वो रात में हमें काम आए जब ये सूरज डूब जाए। थोड़ी ही देर में ये सूरज डूब जाएगा, क्योंकि कितने बज रहे हैं, मेरे ख्याल से 2:30 या 3 बज रहे होंगे। अभी 3 बज रहे हैं, देखा मेरा अंदाज़ा बिल्कुल राइट था, इस समय 3 बज रहे हैं। 4-5 बजे बजते ही ये सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाएगा और यहाँ पर ठंड बढ़ जाएगी। अभी बहुत अच्छी धूप लग रही है, तो ठंड नहीं लग रही है हमें। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। तो ये सब लोग हमारे साथ ही आए थे, कुछ हमारा सामान लेकर के, और कुछ यहाँ पर कुछ लोग रुके थे। क्या कोई नहीं रुका था ना यहाँ पर? हाँ, सब साथ में ही आए थे, सारे लोग साथ में आए थे और इन्होंने बहुत अच्छा खाना हमें बनाया और बना के खिलाया, जिसके लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बुग्याल की बकरियां हैं। बुग्याल की बकरियां, क्या बात है। तो ये एक तरह से छोटा बुग्याल ही लग रहा है, एक तो है ना, ये छोटा बुग्याल, छोटा सा बुग्याल लग रहा है। बुग्याल का छोटा रूप है ये ना। छोटा रूप है। जो बड़ा बुग्याल, असली बुग्याल है, वो इससे कई गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा, और बहुत ही सुंदर है। कुछ नहीं है उसके सामने, मतलब हाँ, मतलब लेकिन बर्फ़ वगैरह यहाँ पर भी काफ़ी जमी रहती है सर्दियों के दिनों में। ओके, 4 फीट 5 फीट। तो इस वक्त हम लोग कर रहे हैं अपना रात का इंतज़ाम सोने का, क्योंकि जल्दी शाम होने वाली है, सूरज ऑलरेडी ढल चुका है, मौसम ठंडा हो रहा है और खाना भी हमने खा लिया है, तो अब सोने का इंतज़ाम करना है। अब ये देखिए किस तरह से हम कर रहे हैं इंतज़ाम टेंट में। सबसे पहले जो हमने बिछाई है वो येलो कलर की जो शीट, इंसुलेशन शीट है, वो हमने नीचे बिछाई है। उसके ऊपर जो है हमने कंबल बिछाया है। एक कंबल हालांकि इतना साफ़ सुथरा नहीं है, बट बिछाने के पर्पज़ के लिए और इंसुलेशन के लिए डेफिनेटली काम करेगा। और उसके पास हमारे पास 2 लाइनर है। एक जो साफ़ सुथरी जो है वॉश, ऑलरेडी जो वॉश की हुई जो लाइनर है वो हमें दी गई है, पहले हम वो पहनेंगे। उसके बाद फिर ये जो अनवॉश लाइनर है उसके ऊपर, उसके बाद हम ये पहनेंगे। और अगर ज़्यादा ठंड लगी फिर हम स्लीपिंग बैग में घुस जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमें पूरी इंसुलेशन मिलेगी, पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी। और साथ में जो हिलमैन्स के एक्सपीडिशन के जो टेंट्स है ये इतने बेहतरीन क्वालिटी के हैं कि रात में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे बरसात हो जाए चाहे ओले गिर जाए, लेकिन अंदर एक ओला नहीं आ सकता। हम आराम से यहाँ पर बेहतरीन नॉर्थ दिशा में अपना सर जो है मैग्नेटिक नॉर्थ में रख करके अच्छी नींद लेंगे और कल सुबह दोबारा रवाना हो जाएंगे अगले बेस कैंप के लिए, है कि नहीं?
काम होता है तो लेना। यहाँ से व्यूज़ दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पर। यहाँ से एक तो टेंट का बहुत अच्छा व्यू हमें मिल रहा है और टेंट के पीछे जो पहाड़ है पूरे गंगोत्री रेंज, वहाँ का भी बहुत ही सुंदर दृश्य हमें देखने को यहाँ से मिल रहा है। मैंने कई सारी फ़ोटो भी खींची है, बट जस्ट टेक ए लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू। थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा है शायद, तो आपको पीछे जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं वो शायद बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखें। तो मैं ज़रा आईसो रिड्यूस करके दिखाता हूँ मैं आपको। कैन यू सी द व्यू इज़ लुकिंग सो ऑसम। और ये है आसपास का पूरा नज़ारा। लुक है। तो स्नैक्स अब मिलना शुरू हो गया। स्नैक्स में है केवल थोड़ा बहुत नमकीन और चाय। अदरक वदरक है क्या इसमें? ये देखिए, ये है इंडिया हाइक्स की दयाल विज्ञान के स्नैक्स। दे कैन रिक्वेस्ट देम कि दबा के थोड़ा चाय अदरक मुझे भी डाल डालें देना चाय यार। में। ये चाय वाली है हमारी। स्नैक आप प्लेट में डलवा लेना। स्नैक्स वो कैसा है क्या? शुगर से बहुत लोगों को एनर्जी आजकल भारत देश में छोड़ दिया शुगर लोगों ने। अच्छी बात है। फूक मारना पड़ेगा। मैं भी घर में गुड़ी लेता हूँ। मुझे एक्चुअली शुगर अच्छी भी नहीं लगती। इट्स नॉट दैट कि मैं हेल्थ के रीजन से ले रही हूँ। आई डोंट लाइक मीठी चाय। बट मेरा क्या है कि मेरा फ्लेक्सिबल अप्रोच है, मुझे पसंद नहीं है। जहाँ जो मिल जाए उसी से काम चला लेता आई डोंट लाइक इट, है ना। अपने हाथों की पी सकती हूँ जो मैं देखो कैसे मजे से चाव से खा रही है स्नैक्स को। अदरक, इलायची एंड एवरीथिंग आई पुट एंड देन विदाउट You're on sugar camera. I'll make very This is very warm. This is -5. कैसे है ना, भाग भी नहीं रहे ये लोग। मेरे को लगा भागेंगे अपने से। To maintain the system. If she's saying something, you better respect. भाई दोस्तों, हम सब निकल रहे थोड़ा वॉक के लिए और एक्लेमेटाइजेशन के लिए। आसपास जाएंगे, थोड़ी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। नयाता टॉप में वो देखिए काफ़ी सारी भेड़ बकरियां चरते हुए नीचे की ओर आ रही है। हमने थोड़ी देर पहले ही अपना इवनिंग स्नैक किया है, टी और नमकीन वगैरह। और अब हम निकल पड़े हैं थोड़ी वॉक के लिए। ठंड काफ़ी है। तब तक ये अंधेरा हो जाएगा। अभी वहाँ तक गए कि अंधेरा हो जाएगा। तो बुला लेना ना उनको। बेस कैंप बेस कैंप वाला बोले इधर को इसलिए भेजा मैंने ऊपर। बाप रे, ये देखो अभी रवि पानी लेके आओ। We'll be seeing brown oak tomorrow. How many kinds of oaks are there? And very likely we are going to Devkund tomorrow. The seven. time. The 7. Hopefully I go. क्या बात है। Seven. Yeah. देखो डॉगी भी खुश हो गया, आ गया सुन के फटाफट। Posted on India Hikes page. I think Right it will be now. posted. You 14 losers. You 14 losers did not join. See, these 7 people went to Devkund. These oak story that you said, it was just for the sake of it, but the real point you wanted to make was the tomorrow's trek, right? But then you have hundreds of thousands of trees. No. So see, if you see that one, that's different tree. That's a different tree. So you shape itself is The oval shape. yeah, the oval shape. So if you see that tree, it has 25 the trail, but डिस्क्लेमर दे दो, लेकिन ये सिखा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 4 बजे उठ के चले जाओ। 4 बजे उठ के कहाँ? अपने से कैंप करना है। नहीं, so what's the Do it tell by me- yourself. नहीं, what's the app name? गाया. मैंने डाउनलोड की थी, it's not coming. Not lack of availability of information. ये find out करने के बाद अर्जुन then understood the importance of communication even more, the availability of information even more. So that's how he documented the entire trek. और फिर उसके बाद जैसे वो famous बना, जैसे it became a sensation, तो इंडिया हाइक्स का मेन मोटिव, वन ऑफ द मेन मोटिव्स दैट, जैसे हमारा पिलर है इन्फॉर्मेशन, सो वी स्टैंड ऑन इट। लाइक मतलब अभी इतना वास्ट ये डेटाबेस अवेलेबल है, बट स्टिल आई टेल यू देयर इज़ अ लॉट ऑफ scarcity of information even now about trekking, because even now people have to fight with their parents to come for the trek, right? अभी भी वो अलाउ नहीं करते, वो ऐसे सोचते कि trekking is not very safe. But here as we see, like all the equipments, gears and all the information that we are
using and making use of to trek, it is making trekking a safe sport, right? That's true. So वो चीज़ और ज़्यादा फैलनी चाहिए. So Right. अभी Exactly. now what is your responsibility once you go back as a part of this How do trekking we use community? it? Like, I'll tell you. And what they think it's not. It's not. Generally, people have the tendency of thinking trekking means only rock climbing. So I know you- that's you not don't- you we are don't like actually to doing. We are actually you walking don't like the and sound we of it, are but enjoying the yeah. nature. Nature. And we are connecting with it, Yeah. right? Instead of moving No, about in a seriously. four But it wheeler is a or two commercial wheeler. organization. Exactly. We are I mean, you know, at the end जब of वो it, लोग Exactly. See, the basic idea is to make all of you able to come back by yourself when you come for another trek. अभी हमें trekking community और ज़्यादा बढ़ानी है so that more and more people can trek, because see, index कितना भी grow हो जाए but पूरे इंडिया को trek नहीं करा सकता, right? Correct. So there has to be some people who are trekking by themselves, right? yeah, सबको तो नहीं करा सकता. सबको तो नहीं करा सकते right, ना. right, right. तो इसीलिए सबको भी केपेबल बनाना है so that they can trek by themselves. So उसी के लिए ये सारी apps और ये सब चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं. So how do I know where? Taking you to the trail. So for example, my trail is going towards this side. So I'll move myself, right? So I have to go towards this side. It's showing. Okay. Towards there, it's showing. तो वो चीज़ वो ट्रेल कौन सी है लेकिन like अभी वो हम how is जहाँ it से आए showing वही है that? ना, Oh, basic- That is what I have recorded. तो बेसिकली ये नॉर्मल है, लाइक नेविगेट करना इससे बहुत ईजी है. आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रेल पे हो कि नहीं हो. जैसे आप And how ऑफ do you ट्रेल जाते make- हो वैसे ही पता चल जाता है. हाँ, and how do you make it? या like सो is दैट्स it- व्हाट आई एम कमिंग टू. सो ये होता है हमारा कॉन्टूर लाइंस. तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी पास है कॉन्टूर लाइंस, है ना. जो बरनाला बुग्याल है उसके यहाँ पे कितनी पास है. सो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ट्रेल इज स्टीप. कॉन्टूर लाइंस It's में जितना continuously changing the elevation. यस, सो कॉन्टूर लाइंस में जितना डिस्टेंस होता है दैट मीन्स इट्स लाइक Gradual. फ्लैट और नैरो, ग्रेजुअल, फ्लैट और ग्रेजुअल. बट whenever it's like very close, that means it's very steep. पर आग is very harmful for your body as well. अरे यार कभी कभी हम नहीं देखा तो जाता. ऐसे आ जाओ, इधर आ बहुत जाओ. सारी चीजें harmful होती हर हैं. जगह वही हो तुम्हारे लिए. गोत्र क्या गोत्र दे दिया पौधी. अब तो लड़का ढूंढ के लाना बायोडेटा पड़ेगा. दे दिया यार इन्होंने तो. बता दो. क्या गोत्र है? नहीं, I don't understand this religion and नहीं हम लोग let's start there, right? क्या what is Dehradun known for? Dehradun is a beautiful Momos. place. No. it's a kind of a I've lived in cosmopolitan Dehradun city. for 5 years. हर तरह के लोग मिल जाते हैं वहाँ पर. हर तरीके वही कह रहा हूँ ना लोग. और जो देहरादून से एक बार रह चुका है ना वो देहरादून वापस जरूर आता है. अच्छा. मतलब born and brought up born in Dehradun, goes out but wants to come back, always wants to come back. देहरादून का पानी ऐसा है, देहरादून का एम्बियंस ऐसा है, देहरादून के लोग अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं. I mean, it's not like बाकी जगह नहीं होते, but the proportion of educated class is more. Let's put it that way. बिल्कुल. और एजुकेशन के लिए ही जाना जाता है देहरादून. तो खाते क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए. खाने के पे उसके उनका इंटरेस्ट ज्यादा है यार. नहीं, basically it's North Indian. अच्छा. Basically it's North Indian. पहनावा भी normal cosmopolitan. What do you usually? बरसात अब हो चुकी है शुरू और सभी लोग अपने अपने टेंट के अंदर घुस चुके हैं. हम दोनों भी अपने टेंट के अंदर है इस वक्त और सारा सामान जो है वो भी टेंट के अंदर सुरक्षित है. अब करना है हमें थोड़ा सामान को अरेंज और थोड़ी देर के लिए विश्राम. तो उसके बाद हो जाएगा डिनर टाइम. चलते हैं सामान अरेंज करते हैं. टेंट में आप देख ही सकते हो कितना स्पेस है कि सामान भी हमारा सारा आ गया और 2 जन कंफर्टेबली आ गए. ये कहने को तो टेंट 3 लोगों के लिए, लेकिन 3 लोग इसमें समा नहीं सकते बढ़िया से. सिकुड़ के सोना पड़ेगा क्योंकि सामान भी बहुत होता है. तो इसलिए 2 लोग अगर है तो इस टेंट में आराम से अपनी नाइट गुजार सकते हैं बिना किसी दिक्कत के. चलिए आपसे मैं बाद में मुलाकात करूँगा. तब तक मैं अपना सामान अरेंज कर लेता हूँ क्योंकि सामान अरेंज करना बोरिंग काम है. यू डोंट वांट टू सी दैट, राइट?